રાજીવ ગાંધી ભારતના સૌથી યુવા વડાપ્રધાન અને 21મી સદીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા. શ્રી રાજીવ ગાંધીનો જન્મ 20 ઓગસ્ટ 1944માં થયો હતો. દૂન સ્કૂલમાંથી પોતાનું શિક્ષણ પૂરું કર્યા પછી રાજીવ ગાંધીએ આગળ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો. શિક્ષણ પછી રાજીવજીએ પાયલટનું લાયસન્સ મેળવ્યું. પરંતુ સંજોગો એવા થયા કે તેઓ રાજકારણમાં આવ્યા અને તેમનું નામ દેશના સૌથી યુવા વડાપ્રધાન તરીકે નોંધાયું. રાજીવ ગાંધી અમેઠી લોકસભા મત વિસ્તારમાંથી પેટા ચૂંટણી લડ્યા અને રાજકીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. ઇન્દિરાજીના અવસાન પછી રાજીવ ગાંધી 1984 થી 1989 દરમિયાન દેશના વડાપ્રધાન રહ્યા. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. 21મી સદીનું સ્વપ્ન, ટેલિકોમ અને માહિતી અને ટેકનોલોજી ક્રાંતિ. રાજીવ ગાંધી 21મી સદીના ભારતના નિર્માણ માટે ટેકનોલોજીના વિકાસના હિમાયતી હતા. વિપક્ષના વિરોધ છતાં રાજીવ ગાંધીએ ટેલિકોમ અને માહિતી અને ટેકનોલોજી ક્રાંતિના બીજ વાવ્યા. આ રાજીવજીની દીર્ઘદ્રષ્ટિનું જ પરિણામ છે કે આજે દરેક હાથમાં મોબાઈલ અને લેપટોપ છે. રાજીવ ગાંધીના નિર્દેશ પર C.ની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેનાથી દેશભરમાં STD-PCO ખુલ્યા, જ્યારે 1986માં MTNLની સ્થાપના થઈ. પંચાયત રાજ, સત્તા લોકોના હાથમાં. રાજીવ ગાંધી માનતા હતા કે 21મી સદીના ભારતના નિર્માણ માટે ગ્રામીણ ભારતનો વિકાસ જરૂરી છે, જેના માટે રાજીવ ગાંધીએ પંચાયતી રાજ પદ્ધતિ લાગુ કરવાની દિશામાં કામ કર્યું. कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा. गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था. गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि ये है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो. यही हम भी करना चाहते हैं. યુવા શક્તિ, રાષ્ટ્ર શક્તિ. વિશ્વના સૌથી યુવા દેશના યુવાનોનું મહત્વ રાજીવ ગાંધી સમજતા હતા. રાજીવ ગાંધીએ એક ક્રાંતિકારી નિર્ણય કરતા 18 વર્ષની વયના યુવાનોને મતાધિકાર આપીને તેમને દેશ માટે વધુ જવાબદાર અને સશક્ત બનાવ્યા. શિક્ષિત ભારત, વિકસિત ભારત. રાજીવ ગાંધીએ ભારતના સાક્ષરતા દરમાં સુધારો લાવવાના ઘણા ઉત્કૃષ્ટ પ્રયાસો કર્યા. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી અને જવાહર નવોદય વિદ્યાલયની સ્થાપના થઈ. ભારતમાં શિક્ષણને નવી દિશા અને નવી શક્તિ આપવાના દૃષ્ટિકોણથી 1986માં નવી શિક્ષણ નીતિ અમલમાં આવી. શાંતિદૂત. રાજીવજી માનતા હતા કે વિકાસ માટે શાંતિ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. રાજીવ ગાંધીએ પંજાબ, આસામ, મિઝોરમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા અને આ રાજ્યોમાં શાંતિ સ્થાપિત કરી. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભારત શ્રીલંકા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. રાજીવ ગાંધીએ તેમની વિદેશ નીતિના મુખ્ય મુદ્દા તરીકે પરમાણુ નિશસ્ત્રીકરણની પસંદગી કરી અને સોવિયત સંઘના નેતા શ્રી મિખાઇલ ગોર્બાચેવ સાથે પરમાણુ શસ્ત્રો મુક્ત અને અહિંસક વિશ્વની હાકલ કરતા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો. રાજીવ ગાંધીએ 2 વખત અમેરિકાનો પ્રવાસ કર્યો. પ્રથમ વખત 1985માં અને બીજી વખત 1987માં. આ મુલાકાતોએ ભારત અમેરિકા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને ખૂબ મજબૂત બનાવ્યા અને દ્વિપક્ષીય વેપારમાં વધારો કર્યો. Abraham Lincoln said that a nation cannot be half slave and half free, and that a house divided against itself cannot stand. રાજીવજીએ પોતાના વડાપ્રધાન પદના કાર્યકાળ દરમિયાન 50થી વધુ દેશોનો પ્રવાસ કર્યો. ઉદાર વ્યક્તિત્વના રાજનેતા. રાજીવ ગાંધી ઉદાર વ્યક્તિત્વના રાજનેતા હતા. અમેઠીની જનતા સાથે રાજીવજીનો વિશેષ લગાવ હતો. રાજીવ ગાંધી ગામડાઓમાં જતા અને સામાન્ય લોકોના ઘરે જતા. દરેક વ્યક્તિની સ્થિતિ જાણતા, તેમની સમસ્યાઓ સાંભળતા.
રાજીવજી કહેતા હતા કે લોકશાહીમાં દરેકનું સન્માન થવું જોઈએ. શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચેના સંબંધો રાજકારણ પૂરતા સીમિત ના રહેવા જોઈએ. જ્યારે રાજીવ ગાંધીને ખબર પડી કે અટલ બિહારી વાજપેયીની તબિયત નાદુરસ્ત છે અને તેમને સારવાર માટે વિદેશ જવું પડશે, ત્યારે રાજીવજીએ ન્યૂયોર્ક જતા ભારતીય પ્રતિનિધિ મંડળમાં અટલજીનો સમાવેશ કર્યો અને સારવારની વ્યવસ્થા કરી. રાજીવજીએ આ વાતનો ક્યારેય ઉલ્લેખ કર્યો નથી. રાજીવજીની મૃત્યુ પછી અટલજીએ કહ્યું કે આજે હું રાજીવજીને લીધે જીવિત છું. રાજીવ ગાંધી તેમના સપના પૂર્ણ કરવાની ખૂબ જ નજીક હતા. 1991માં 1 મહિના સુધી ચાલેલા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રાજીવજી દેશના લગભગ તમામ ભાગોમાં સભા કરી રહ્યા હતા. 21 મે 1991ના રોજ તામિલનાડુમાં શ્રી પેરમ્બદૂરની ચૂંટણી સભામાં થયેલા બ્લાસ્ટમાં રાજીવ ગાંધી શહીદ થયા. देश टूटने नहीं देंगे और चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे. નમસ્કાર. 21મી સદીના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીજીની આજે જન્મ જયંતિ પ્રસંગે આ વેબિનાર કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ખાસ ઉપસ્થિત આપણા સૌના આદરણીય નેતા, ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટીના ખજાનચી આદરણીય અહમદભાઈ, ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી આદરણીય સાતવજી, વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા આદરણીય ભાઈ શ્રી પરેશભાઈ, અને ખાસ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આજના વેબિનારના મુખ્ય વક્તા, જાણીતા જર્નાલિસ્ટ અને રાજ્યસભાના સાંસદ આદરણીય કુમાર કેતકરજી અને તમામ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાનો અને સાથીઓ, આજે આપણે રાજીવજીને યાદ કરીએ. આખો દેશ ને વિશ્વ યાદ કરે તેમના વિઝનને કારણે, એમના સમર્પણ, સદભાવનાની ભાવના, કાર્યો, રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં અમૂલ્ય યોગદાન અને રાષ્ટ્ર માટે એમના બલિદાનને કારણે આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ. આજે ચોક્કસ અમારા જેવા લાખો કરોડો યુવાનો છે કે જેમના રાજીવજી પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે. એક 40 વર્ષની યુવાન વયે આખા દેશના વડાપ્રધાન તરીકેની જવાબદારી સ્વીકારી અને એમણે પોતાના માટે નહીં પણ રાષ્ટ્ર માટે આ જવાબદારી સ્વીકારી. અને આજે આપણે સૌએ સ્વીકારવું પડે કે એમના એ પહેલી ચૂંટણી હતી કે જેમને એમના નેતૃત્વમાં લડાઈ ને ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી જંગી બહુમતી કોંગ્રેસને મળી. લોકસભાની 541 બેઠકમાંથી 414 બેઠકો રાજીવજીના નેતૃત્વમાં જીતાઈ અને વડાપ્રધાન પદે બિરાજમાન થયાના ટૂંકા શાસનકાળમાં એમણે જે આ દેશને, દેશની જનતાને, આખા વિશ્વને જે આપ્યું એનાથી સ્પષ્ટ છે કે આ રાજીવજી જો લાંબુ એમનું શાસનકાળ રહ્યું હોત તો દેશમાં અનેક જાતના પરિવર્તનો આવ્યા હોત. આ ટૂંકા શાસનકાળમાં રાજીવજી સ્પષ્ટ માનતા હતા કે આધુનિક વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી રાષ્ટ્રને ગરીબીમાંથી મુક્તિ અપાવી શકશે. અને આ ટૂંકા શાસનકાળમાં એમણે ખાસ કરીને દેશના યુવાનો, જે આવતીકાલનું આપણું ભવિષ્ય છે, એને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં, રાષ્ટ્રના વહીવટમાં ભાગીદાર કરવા માટે 18 વર્ષે મતાધિકાર આપ્યો. 50% વસ્તી મહિલાઓની એમને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં ભાગીદાર બનાવવા, 33% મહિલા અનામત આપી. પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા, સીધી મદદ દિલ્હીથી ગામ સુધી પહોંચે, પરિવાર સુધી પહોંચે, એ ભાવનાથી
કેન્દ્ર સરકારથી સીધી પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થામાં નાણાકીય સહાય, નવી શિક્ષણ નીતિ, ટેકનોલોજી ક્રાંતિ, જવાહર નવોદય વિદ્યાલય એવા અનેક કાર્યો દ્વારા એમણે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં લોકોના ઉત્કર્ષ માટેની કામગીરી કરી. પડોશી રાષ્ટ્રો સાથે સારા સંબંધો જળવાય, આતંકવાદની નાબૂદી થાય એવા ધ્યેય સાથે જ્યારે કામ કરતા હતા ત્યારે કમનસીબે નાની વયે આતંકવાદી હુમલામાં એમનું અવસાન થયું. આજે 76મી જન્મ જયંતિ પ્રસંગે આપણે સૌ એમને યાદ કરીએ છીએ. કોંગ્રેસના કાર્યકરો, યુવાનો સૌ આજે સંકલ્પ બનીએ કે રાજીવજીએ જે 21મી સદીનું સ્વપ્ન જોયું હતું, જે આપણને સૌને દિશા બતાવી હતી, એ જ દિશામાં આગળ વધવા માટે આદરણીય સોનિયાજી, રાહુલજી જે અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, અનેક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે, તો દેશની સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં સામાજિક સદભાવ જળવાય, કોમી એકલાસ જળવાય, આતંકવાદ નાબૂદ થાય અને આજની જે ભ્રષ્ટાચાર, મોંઘવારી, બેરોજગારીના જે પડકારો છે એનો સામનો આપણે સૌ સાથે મળી કરીએ, એ જ આજના દિવસે આપણો સૌનો સંકલ્પ હશે. આજે ફરીથી આપણા સૌના તરફથી રાજીવજીના કાર્યોને, એમના બલિદાનને યાદ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવીએ છીએ. આ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એમના ચરણોમાં વંદન કરીને સત નમન કરીએ છીએ. આપ સૌ અહીંયા જોડાયા છો ત્યારે આપ સૌને પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ તરફથી આવકારું છું. जय हिंद. अब मैं विनती करूंगा हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय कुमार केतकर जी से कि वो हम सबको राजीव जी 21वीं सदी के स्वप्न दृष्टा के बारे में बात करें और मार्गदर्शित करें. आदरणीय कुमार केतकर जी. आप सुन सकते हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी सर. हाँ, सबसे पहले मैं आप गुजरात कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, नेतागण और प्रदेश कांग्रेस की संगठन, इसका आभार प्रदर्शित करता हूं कि इस अवसर पे मुझे आपने निवेदन करने के लिए बुलाया. आज राजीव गांधी होते थे तो उनकी उम्र 77 होती थी. इस 77 वर्षों में सिर्फ अपना देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस तरह से बदल हो चुके हैं कि शायद आज राजीव जी वापस आएंगे तो उनको भी समझेगा नहीं कि कितना बदल इस दुनिया में हुआ है. लेकिन उनको ये भी शायद समझ में आएगा कि इस जो बदल हुआ है, ये बदल उनकी वजह भी हुआ है. उन्होंने जो प्रयत्न किया उसके वजह भी ये बदल हुआ है. जब उनका जन्म हुआ 1944 में, 20 अगस्त 1944, तब की दुनिया, जब वो प्रधानमंत्री बने 1984 में, तब की दुनिया और अभी जब वो 77 बरस के हो सकते थे, तब की दुनिया में कितना फर्क है ये हम समझना चाहिए. तब हमें मालूम पड़ेगा कि भारत में क्या क्या हो गया है राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के पहले और बाद में, और उनकी लीगेसी क्या है, उनका वारसा क्या है. जब उनका जन्म हुआ तब पूरा दुनिया में दूसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध चल रहा था. और जो विश्व युद्ध किसके खिलाफ चल रहा था? तो फैसिज्म के खिलाफ चल रहा था, नाजिज्म के खिलाफ चल रहा था, हिटलर शाही के खिलाफ चल रहा था. 1944 में हिटलर की जो फौज थी वो हार रही थी रेड आर्मी से ज्यादातर, और रेड आर्मी सोवियत यूनियन की तरफ से हिटलर के सामने लड़ रही थी. एक ही बरस के अंदर, राजीव गांधी के जन्म के बाद एक ही बरस के अंदर 1945 के 30 अप्रैल को हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी. खुद के माथे में उन्होंने पिस्तौल लगा के आत्महत्या कर ली. और इसका आत्महत्या का कारण यह था कि रेड आर्मी के साथ और दोस्त शक्ति के साथ नाजिज्म का पूरा पराभव हो गया था, नाजिज्म का अंत हो गया था.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाजिज्म का अंत हुआ। इसका अर्थ ये नहीं कि नाजिज्म के विचार और नाजिज्म की संगठन तंत्र खत्म हुए। जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में, तब तो राजीव गांधी सिर्फ 3 बरस के थे। नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था कांग्रेस नेताओं को 1947 में, और वो भी गांधी जी के हत्या के पहले 5.5 महीने, कि इस देश को, इस स्वतंत्र देश को, देश स्वतंत्र होकर कुछ महीने हुए थे, इस स्वतंत्र देश को कोई धोखा है तो वो धोखा आरएसएस जैसी संगठनों से है। ये उन्होंने 47 में लिखा है, गांधी जी के हत्या के पहले लिखा है। और आरएसएस के विचार जिनके पास है, ऐसे संगठन सत्ता में आएंगे तो इस देश को इस तरह की इंजरी पहुंच जाएंगी, इस तरह से देश घायल हो जाएगा कि उससे बाहर पड़ने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। ये उन्होंने 47 में लिखा। उसके बाद 4 महीने के अंतर में गांधी जी की हत्या हो गई। मतलब उनके शब्द जो है वो सच्चे होने लगे थे, क्योंकि वो जो हत्या हुई वो हत्या गोडसे ने, कि जो आरएसएस और हिंदुत्ववादी विचार संगठन का प्रतिनिधि था। 1947 में स्वतंत्रता, 1948 में गांधी जी की हत्या, 1950 में हम प्रजासत्ताक बने और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाई। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाई 1950 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में 4 बरस बनाई जा रही थी, 1946 टू 1950। और वही कॉन्स्टिट्यूशन को आज बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और वो खतरा अपने अंदर से है, कोई बाहर की शक्ति से नहीं है। जिस आरएसएस का जिक्र पंडित नेहरू ने किया था, वही आरएसएस की विचारधारा मानने वाले लोग आज सत्ता में है। उनको ये राज्य घटना 1950 में भी मंजूर नहीं थी, 1952 में जब पहली इलेक्शन हुई तब भी मंजूर नहीं थी, कभी भी मंजूर नहीं थी, क्योंकि तभी से उनको अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना उनका उद्दिष्ट था। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है। राजीव गांधी ने, ये तो पंडित नेहरू का लेटर पढ़ा नहीं था, राजीव गांधी 1952 की इलेक्शन हुई तब 6 बरस के थे, और 1952 के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने देखा है अपना देश, वो पूरा स्वतंत्र भारत का प्रवास देखा है। क्योंकि 1947 से ही अपना प्रवास शुरू हो गया, 1952 से इलेक्टोरल हिस्ट्री शुरू हो गया, और 1984 में जब वो चुन के आए और अपनी देश में इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीटें मिलके वो चुन के आ गए, और उनके उसके बाद उनको पता चला, मतलब उनके बाद उनको थ्रेट बहुत नजदीक से देखने मिली कि ये आरएसएस और इस तरह की विचारधारा कितने लोगों में, अपने ही देश में, अपने ही लोगों में पहुंची हुई है। उनका जो प्रचार था 1984 में, वो इसी शक्तियों के खिलाफ था, लेकिन उनको भी शायद ये धोखा कितना दूर तक पहुंचा है उसका अंदाजा शायद नहीं आया होगा। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा। 1975 में अपने बाजू में बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान, जो वहां के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बाद में अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई। 2 ही बरस के बाद 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हकाला गया, और 1979 में उनकी भी हत्या, जिसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं, वो मिलिट्री की तरफ हुई। मतलब 75 में मुजीबुर रहमान, 77-79 में जुल्फिकार अली भुट्टो, और 1984 में उसके 5 बरस के बाद, 79 के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, और इंदिरा जी की हत्या होने के बाद 7 बरस में राजीव गांधी की हत्या हो गई। ये आप देखोगे, ये जो मर्डरस जर्नी आप देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि दक्षिण एशिया में ऐसी कोई साजिश है, ऐसा कोई षड्यंत्र है कि जो इस देश के और इस एशिया, साउथ एशिया को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, और उसके लिए उनके पास जो हस्तक है वो इसी संगठन की तरह है।
जैसे कि आरएसएस है। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई और 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई, और दोनों हत्या के बारे में हम ये कह सकते हैं कि 1991 में उनकी एसपीजी निकाल गई थी। उनका प्रोग्राम जो तमिलनाडु में जाने का था वो पूरा बदल गया था। आपके कोई लोगों ने कैफे मद्रास नाम की एक फिल्म देखी होगी, उसमें तो बहुत 10% आया है सब सच, लेकिन मैं उनके निर्माताओं के साथ मैंने बात किया है, उन्होंने मुझे कहा कि उनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है कि जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और वो षड्यंत्र सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, अपने देश के लोगों के साथ बनाया हुआ वो षड्यंत्र था। इंदिरा गांधी की भी हत्या और राजीव गांधी की भी हत्या करने के लिए इनको इतनी जरूरत क्या थी? इनका पूरा डायनास्टी जिसको कहते हैं, उनके पूरे फैमिली को इतना वो थ्रेट क्यों मानते हैं? राजीव गांधी को थ्रेट क्यों मानते हैं? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुए तब उनकी उम्र सिर्फ 40 बरस की थी, और जैसा मैंने कहा 1950 के बाद उन्होंने जो देश का प्रवास देखा था, तब उन्होंने ये समझ में आया था उनको कि जिस तरह की आईआईटी, जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह का साइंटिफिक टेम्पर पंडित नेहरू ने दिया था देश को, उसके बाद इंदिरा जी ने दिया था। जैसे कि उन्होंने जेएनयू बनाई, इसरो बनाई, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेस था, वो सेक्युलरिज्म का बेस था, वो साइंटिफिक टेम्पर का बेस था। और राजीव गांधी को ऑब्वियसली समझ में आया कि अभी इसी को आगे लेना है। इसी के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन बनाया। राजीव गांधी नहीं होते तो शायद, जैसे आपको अभी फिल्म में बताया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, राजीव गांधी नहीं होते तो शायद अपने यहाँ जिस तरह का कंप्यूटर एरा हो गया है, जिस तरह से हम मोबाइल के साथ रहते हैं पूरे दिन, हर एक 16, 15, 12 बरस का लड़का या लड़की भी मोबाइल के साथ रहती है, जैसे कि मोबाइल उनके बॉडी का एक पार्ट हो गया है। ये पूरा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो है वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और बाद में आज का जो युग है वो राजीव गांधी के वजह अपने यहाँ आया है। राजीव गांधी जब कंप्यूटर के बारे में बात करते थे 1985 में, तब मैं जर्नलिस्ट था, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। मुझे मालूम है पूरी न्यूज़पेपर, पूरा मीडिया, तब मीडिया में मतलब टीवी नहीं था, ज्यादा था लेकिन प्राइवेट टीवी नहीं था। लेकिन जब राजीव जी ने जब कंप्यूटर का नारा दिया कि अपना देश कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए, तब ये सब मीडिया और बहुत सारे नेतागण, विरोधी पक्ष के नेतागण, तब के कांग्रेस विरोधी जो थे, उन्होंने राजीव गांधी के एक प्रकार मजाक उड़ाई कि क्या कंप्यूटर क्या करेंगे, कंप्यूटर क्या कर सकता है? हमारे देश में लोगों के पास पानी के लिए कुआं नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं है गाँव में, स्कूल की इमारतें भी नहीं है, और ये कंप्यूटर क्या करेगा? बहुत सारी टीका कंप्यूटर के बारे में और राजीव गांधी के खिलाफ की गई, उनको कंप्यूटर बॉय का कहा गया। लेकिन राजीव गांधी नाउम्मीद नहीं हुए। उन्होंने टेक्नोलॉजी मिशन तैयार करके सैम पिट्रोडा, जो आपके ही गुजरात स्टेट के हैं, उनको उसकी जिम्मेदारी दी, और सैम पिट्रोडा ने इमीडिएटली कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम सुधारने का और एडवांस करने का प्रयास शुरू किया। वो प्रयास 1984 में शुरू हुआ, और 1991 तक जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब बहुत सारी प्रगति हो गई थी। लेकिन उसी के बारे में भी, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में भी, पूरे विरोधी पक्ष के जो लोग थे वो टेलीकम्युनिकेशन के भी खिलाफ बोल रहे थे। अभी 1985 में मुझे याद है, मैं जर्नलिस्ट होके मुंबई में गया था, उनका मुंबई में भाषण था, कांग्रेस की सेंटेनरी थी ब्रिबॉन स्टेडियम पे, और कांग्रेस के सेंटेनरी स्पीच में और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अपने देश को अभी सामने कौन सा आह्वान है, कौन सा चैलेंज है अपने देश के सामने, तो हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं। 15 बरस के बाद, 1985 में बात कर रहे थे, 15 बरस के बाद हम 21st सेंचुरी में जाएंगे। वो एकदम नई सदी है, उसके नए चैलेंजेस हो गए, लेकिन वो नए चैलेंजेस जो है उसका सामना करने के लिए एक मेजर इंस्ट्रूमेंट अपने हाथ में है और होना चाहिए, और वो है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी सिर्फ कंप्यूटर नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी हाथ में होते हुए हम 21st सेंचुरी को सामने नहीं जा सकते। इसके लिए हमको मलेरिया इरेडिकेशन भी करना चाहिए, और जिसकी आज बहुत चर्चा होती है, स्वच्छता मिशन करके गांधी जी का नाम लेके, लेकिन उस स्वच्छता मिशन की तरह से उन्होंने गंगा का भी स्वच्छता मिशन ले लिया था। तो उनके जो टेक्नोलॉजी मिशन में 10 ऑब्जेक्टिव थे, उसमें एक स्वच्छता भी था, उसमें कंप्यूटर भी था, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी था, उसमें डिसीज कंट्रोल भी था। उनका ये इरादा था कि जैसा आईएएस सर्विस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, उस तरह का एक आईएमएस, इंडियन मैनेजमेंट सर्विस होनी चाहिए। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक मैनेजमेंट चाहिए, हर एक स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, कि वो पूरा डिस्ट्रिक्ट उसका मैनेज हो सके। ऐसा इंडियन मैनेजमेंट सर्विस तो उन्होंने बना नहीं सके उनके कारकिर्द में, लेकिन एक तो उन्होंने किया कि इस तरह का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए जरूरत है पंचायत राज की। पंचायत राज होगा, हर एक जिले में, हर एक तालुका में, हर एक गांव में पंचायत सिस्टम होगी, तो पंचायत सिस्टम वो गांव की क्या क्या जरूरतें हैं, उनके नीड्स क्या क्या है और उनके रिसोर्सेस क्या क्या है, वो समझ के वो उसका प्लानिंग करेंगे, और पंचायत का प्लान करके वो प्लानिंग कमीशन तक जाएगा। प्लानिंग कमीशन तो नरेंद्र मोदी ने पूरा निकाल दिया है। उनको ऐसा लगता था कि प्लानिंग कमीशन की जो संकल्पना है वो पंडित नेहरू ने लाई है। उनका पूरा बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का एजेंडा यह है कि पंडित नेहरू की जो जो कल्पना है, जो जो विचार है, जो जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी फैमिली है, उसको पूरा खत्म करने का उन्होंने पूरा निर्णय लिया है, निर्धार किया है, और उसी तरह उनका काम चालू है। जैसा अभी फिल्म में बताया, इस तरह का नेहरू फैमिली को, नेहरू विचारधारा का खत्म करने का निर्धार वाजपेयी ने नहीं किया था। वो भी बीजेपी में थे, वो भी अपने विचारधारा के खिलाफ थे, वो भी आरएसएस से आए हुए थे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक पर्सनल वॉरफेयर नेहरू के विचारधारा के खिलाफ और नेहरू फैमिली के खिलाफ शुरू किया है, उस तरह का वाजपेयी ने किया नहीं था। लेकिन अभी हम जहां रहते हैं, इस देश में जब रहते हैं, तब के जब सामना देखते हैं, तो अभी 6 वर्ष हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। इस नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जो जो वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ला रहे हैं, वो सब की शुरुआत राजीव गांधी के जमाने में हुई है, या उसके पहले नेहरू और इंदिरा जी के जमाने में। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, या आज की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आपके पास मोबाइल में सब पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में आता है, वो राजीव के बाद शुरू हुआ है, सैम पिट्रोडा के बाद शुरू हुआ है। और अभी जिस तरह से मोदी उसका कैंपेन करता है कि हम डिजिटल इंडिया ला रहे हैं, वो डिजिटल इंडिया की पहली स्लोगन भी राजीव गांधी ने दी थी। तभी उन्होंने कहा था कि अभी देश में और डिजिटल इंडिया और पंचायत, ये दोनों वो साथ में लाना चाहते थे। पंचायत का मतलब ये नहीं था सिर्फ कि रूरल पावर रूरल लोगों के साथ में आ जाइए। रूरल पावर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रूरल एस्टेब्लिशमेंट विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट विथ कंप्यूटर, विथ मोबाइल फोन्स, इस तरह का उनका पंचायत का प्लान था। और वो पंचायत में जितने यूथ शामिल होंगे, उतनी वो मॉडर्न होगी, उतनी वो 21st सेंचुरी को सामने जा सकती है, क्योंकि 21st सेंचुरी तो यंग लोगों के साथ है। और यंग लोग मतलब कम, तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि अपना वोटिंग जो है, वोटिंग एज जो है, जो 21 था, उन्होंने 18 कर दिया। वो 18 करने का वोटिंग एज का प्लान, पंचायत का प्लान, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर और मोबाइल का प्लान, और डेमोक्रेटिक सिस्टम का, सेक्युलरिज्म का प्लान, ये सब एक करके हम सोचना चाहिए। ये अलग अलग नहीं है, पंचायत और सेक्युलरिज्म अलग नहीं है, पंचायत और टेक्नोलॉजी अलग नहीं है, पंचायत और डेमोक्रेसी अलग नहीं है, क्योंकि उनको डेमोक्रेसी डीपन करने की जरूरत थी। लेकिन अब मैं अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने, नेताओं के सामने बोल रहा हूं, तो मुझे ये ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ी जिम्मेदारी से भी मुझे बोलना होगा। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर सकता हूं और कह सकता हूं कि राजीव गांधी जो 1989 में इलेक्शन हार गए, इसका सिर्फ ये कारण नहीं है कि उनके खिलाफ बोफोर्स के एलिगेशन आ गए और अयोध्या एजिटेशन बढ़ गया, हिंदुत्व का एजिटेशन बढ़ गया। हम सब सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये जो हार हुई है, वो हमने, मतलब अपने देश के जिन लोगों ने 1984 में उनको 414 सीट दी थी, वो 414 को
उनको 197 पे सीट किसने लाए? वो 5 ही वर्ष में, वो तो अपने ही लोगों ने लाए, अपने ही लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो विचारधारा आ रही थी नेहरू, इंदिरा, राजीव तक, इसका कोई फैमिली रिलेशन नहीं था, वो कोई डायनास्टी नहीं था, वो एक विचारधारा का कंटिन्यूएशन था। लेकिन वो कंटिन्यूएशन जिस तरह कांग्रेस के स्थानिक नेताओं ने, ग्रामीण या शहरी या देश के नेताओं ने जिस तरह लोगों में लेके जाने की जरूरत थी, उस तरह से वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इंटेलिजेंटली गया नहीं है। मतलब हार जो हुई कांग्रेस की, उसके लिए सिर्फ उनका एग्रेशन, उनका जो प्लान है, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उसका ही कारण नहीं है। हम लोग कॉम्प्लेसेंट रहे। हम लोग जिस तरह से उस विचारधारा को मान के लोगों में जाना चाहिए था कांग्रेस ने, उस तरह हम गए नहीं है, और इसी के लिए 1989 में हम हार गए। अभी आपको 1989 की बात मालूम होगी, 5 वर्ष के बाद राजीव गांधी हार गए थे, लेकिन उनकी उम्मीद नहीं हारी थी, उनकी एनर्जी नहीं हारी थी। उन्होंने हारने के बाद इमीडिएटली अपना काम शुरू किया था, इमीडिएटली, एक दिन भी वो रुके बैठे नहीं थे। और 89 to 91 में उन्होंने बहुत सारे देशों में घूमे, वो चर्चा की। तब का जमाना क्या था? 1989 में दुनिया में कौन से आह्वान थे, दुनिया में कौन से सामना करना पड़ता था? तब था कोल्ड वॉर का आखिर टप्पा। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई, और 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, विघटन हो गया। मतलब 1989 to 1991 जब राजीव गांधी ऑपोजिशन में थे, तब दुनिया में ये बदल हो रहे थे। 1990 में अमेरिका ने इराक के ऊपर आक्रमण किया और इराक पूरा बॉम्ब कर दिया। ये सब जब सामने आ रहे थे, ये इश्यूज कोल्ड वॉर के बाद के, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, ऑपोजिशन लीडर थे, फिर भी वो रशिया गए, गोर्बाचोव के साथ बात की, अमेरिका के लीडरों के साथ बात की। जितना काम प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे, तब पहले वीपी सिंह थे और बाद में चंद्रशेखर थे, जितना काम वो कर सकते थे प्रधानमंत्री होते हुए, उससे भी ज्यादा काम राजीव गांधी ऑपोजिशन लीडर होके दुनिया में घूम के कह रहे थे कि ये सब वर्ल्ड के वॉर सिचुएशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर से खत्म हो गई नहीं। इसके लिए अपने को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चाहिए। ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की कल्पना उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के और वहां के जनरल बॉडी में, जनरल असेंबली में उन्होंने रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं होते हुए भी वही न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मैसेज उन्होंने पूरे दुनिया में कहना शुरू किया, उसका कैंपेन शुरू किया। इसका मतलब यह है कि राजीव गांधी हारने के बाद भी एक ग्लोबल लीडर मारे गए थे, वो इंग्लैंड में हो या जर्मनी में हो, रशिया में हो या अमेरिका में हो। क्यों इसकी याद करनी चाहिए? क्योंकि 1991 में जब उनकी हत्या हुई, तब जैसा मैंने कहा कि मुजीबुर रहमान, भुट्टो, इंदिरा और बाद में राजीव, ये जो हत्या हुई, ये हत्या को इसी तरह का ग्लोबल कॉन्स्पिरेटोरियल प्लान है। ये ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से देश है, कौन कौन सी एजेंसी है, इसका अभी तक पूरा पता भी चला नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी की, वही लोगों ने अपने देश में ये राजकीय परिवर्तन लाया है। और ये राजकीय परिवर्तन लाने वाली जो शक्तियां हैं, देश के अंदर या देश के बाहर, उसका एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप हम समझ नहीं सकते। हम समझते हैं कि एक ऑपोजिशन का पावर आ गया, ऑपोजिशन पावर में है, बीजेपी पावर में है या एनडीए पावर में है। वैसे वाजपेयी जी पावर में थे, वो भी एक एनडीए 1 था। लेकिन हम ये नहीं समझ में लेते हैं कि इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है, वो कॉन्स्पिरेसी इस तरह की है, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं ज्यादा बोलते। वो कांग्रेस मुक्त देश करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मुक्त देश का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के लोगों को अपने साथ लेके कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। तो ये फॉल्ट तो अपने लोगों का है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ लेना चाहते हैं, वो बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के 3-4 लीडरों को लेके साथ ले जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के संगठन को साथ लेना है और फिर भी कांग्रेस मुक्त देश करना है। इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? अंतर्विरोध इसमें क्या है? इसमें अंतर्विरोध यह है कि वो कांग्रेस लोगों को अपने साथ लेके नेहरू की विचारधारा जो है, उससे देश मुक्त करना चाहते हैं। वो कांग्रेस मुक्त मतलब कांग्रेस लोगों को मुक्त करना नहीं चाहते हैं।
कांग्रेस मुक्त देश नहीं चाहते, वो कांग्रेस को साथ में लेके नेहरू मुक्त देश करना चाहते हैं। नेहरू मतलब नेहरू की विचारधारा, मतलब नेहरू डायनास्टी नहीं, नेहरू विचारधारा। और ये हम समझ में नहीं आते। और ये विचारधारा नष्ट करने के लिए जो साजिश है वो अपने देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। और इसी के लिए जब उनको पता चला कि हारने के बाद 1989 में हारने के बाद वीपी सिंह सरकार पूरा 1 बरस भी चला नहीं सके, 11 महीने में उनका सरकार चला गया। उनके बाद 7 महीने के अंदर चंद्रशेखर का सरकार भी चला गया। और वो 2 बरस में क्या हुआ? वो 2 बरस में ये हुआ कि अपने देश को 20 टन्स ऑफ गोल्ड अपने देश को इंग्लैंड के एक बैंक के खाते में डालना पड़ा, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे थे। अपनी इकोनॉमी इतनी बुरी हालत थी कि हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे, और इसी के लिए उधर गोल्ड अपने को रखना पड़ा। और उसी क्राइसिस में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर हुए थे, और चंद्रशेखर भी सरकार नहीं चला सके, इकोनॉमी सुधर नहीं सके। उनके जमाने में भी पूरे आसाम वगैरह फिर से शुरू हो गए थे क्राइसिस, मतलब देश भी नहीं चला सकते थे और इंटरनेशनल सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तब राजीव गांधी की जो लीडरशिप थी वो दुनिया में मानी गई थी। तो जब राजीव गांधी फिर से वापस आएंगे, ये जब ध्यान में आया 91 में, मतलब 89 में हारने के बाद 91 में फिर से इस तरह से इलेक्शन हो रही थी कि राजीव गांधी फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब उनकी हत्या हुई। उनकी हत्या 1984 और 89 के बीच में भी 2 दफा एफर्ट हुआ था, लेकिन वो अलग था और 91 का अलग है। जब इन शक्तियों को, अंतरराष्ट्रीय और देश के अंदर शक्तियों को पता चला कि राजीव गांधी वापस प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तो राजीव गांधी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही जो विचारधारा है, ये विचारधारा अंतरराष्ट्रीय विचारधारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चलेगी। मतलब वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की चलेगी, कॉन्फ्लिक्ट ओनली पीस सॉल्यूशन कर सकता है, वॉर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये सब जो विचारधारा है, अपने देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकती है तो अपना देश ऑटोमेटिकली, लोग, देश का मतलब सिर्फ देश नहीं, अपने देश को कितने राफेल है, कितने टैंक्स है, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है, इससे नहीं समर्थ होता। अपने देश के लोग जब समर्थ होते हैं तब देश समर्थ होता है। उस तरह की समर्थता राजीव गांधी चाहते थे, इसी के लिए उनको पंचायत चाहते थे। सिर्फ बोफोर्स गन और राफेल से नहीं होती है कोई भी बात। तो ये विचारधारा, लोगों को समर्थ करने की विचारधारा, ये इन शक्तियों को धोखा लगता था, और इसी के लिए राजीव गांधी मारे गए, इसी के लिए इंदिरा गांधी भी मारी गई है। तो मुझे लगता है कि ये विचारधारा राजीव गांधी की हत्या के बाद फिर से रह गई, और नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से वही विचारधारा लेके आगे गए। और इसी के लिए आप सब देख सकते हैं कि जो अमेरिका में आज सिलिकॉन वैली में बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, नासा में बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी में बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स है, वो किसके प्रोडक्ट है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट है? वो सब आईआईटी से आए, जो आईआईटी को पंडित नेहरू ने लगाया था। वो सब इसरो ये जैसे संगठन में, जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में थे जो इंदिरा गांधी ने बनाया था। जो कंप्यूटर एरा जिसकी मजाक उड़ाई गई, वो कंप्यूटर एरा के पूरे सिस्टम में जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, वो आज सिलिकॉन वैली में, नासा में और बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट और बाकी सब एप्पल कंपनी में है। मतलब ये जो आज अमेरिका में अपना एस्टेब्लिशमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट है, वो इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट ये विचारधारा से आई है। अभी ये विचारधारा से आए हुए ये सब लोग जो है, अमेरिका में गए हुए, यूरोप में गए हुए, ये सब लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं। सब मतलब हर एक नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब 80%, 80% ऑफ द इंडियंस इन यूएस एंड यूरोप हिंदुत्व की बात करते हैं, और राजीव गांधी के खिलाफ बोलते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, नेहरू के खिलाफ बोलते हैं। जबकि ये आज जो उनको यश प्राप्त हुआ है लाइफ में, वो नहीं प्राप्त हो सकता था यदि इस सिस्टम, इस विचारधारा का अपने देश में पालन नहीं होता था। तो अभी ये समझना चाहिए कि ये इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो गया। जो लोग इनको कृतज्ञ रहना चाहिए, जो लोग उनको ओब्लाइज रहना चाहिए कि आपकी विचारधारा, आपकी पॉलिसी की वजह आज हम अमेरिका में इतने बड़े पोस्ट पे है, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं? और वही 96 के बाद वही विचारधारा
जो 1989 में गड़प हुई थी वो फिर से आ गई और 98 में वाजपेयी जी का राज आया। फिर भी वाजपेयी जी ने पहला भाषण जो दिया, उसने उनको जो पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि आप अभी नेहरू नीति के बदल रहे हैं क्या, फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या रहेगी? तो वाजपेयी जी ने कहा नेहरू ने इतना अच्छा ढांचा दिया है अपने फॉरेन पॉलिसी का कि वो मैं बदलना नहीं चाहता। अभी वाजपेयी ने ये कहा, मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन का ये मत था, ऐसा नहीं है। उनके ऑर्गेनाइजेशन का मत ये था कि नेहरू जी की विचारधारा को पूरा खत्म करने का है। इसी के लिए आपको ये ध्यान में आया होगा कि 1999 2004 मतलब 98 फर्स्ट, 99 सेकंड और 2004 तक जो उनका कैंपेन रहा, वो कैंपेन नेहरू का नाम नहीं लेते हुए लेकिन वो विचारधारा से दूर जाने का एफर्ट रहा। लेकिन उनको ये समझ में आया कि यही विचारधारा से अपने लोगों को आधार मिलता है। इसी के लिए 99 to 2004 इस कार्यकाल में, वाजपेयी जी के कार्यकाल में, उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया। मुझे याद है प्रमोद महाजन थे, प्राइम मिनिस्टर के हाउस से ही काम करते थे, उन्होंने पब्लिक स्पीच दिया कि हमने जो राजीव गांधी के खिलाफ कैंपेन किया, टेक्नोलॉजी के खिलाफ कैंपेन किया, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हम वो नहीं करेंगे, हम हमारा ही राज मतलब बीजेपी का राज वही टेक्नोलॉजी से कंसोलिडेट करेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। 2004 में सोनिया गांधी ने जिस तरह से अलायंस बांधे, उसके वजह 2004 में इस शक्तियों का पूरा डिफीट हो गया। तब से इन लोगों का खुन्नस बढ़ गया है कि क्योंकि 2004 में उनको लगता था कि 96 में कांग्रेस की हार होने के बाद अभी कांग्रेस वापस नहीं आ सकती। इसी तरह की उनकी भावना 1977 में हुई थी जब इंदिरा गांधी और संजय गांधी हारे थे कि अभी कांग्रेस वापस नहीं आ सकते, नेहरू फैमिली इज फिनिश्ड। इस तरह का विचार 77 में भी था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी वापस आ गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद भी उनको लगा कि अभी तो राजीव प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपके यहाँ के जिन लोगों की उम्र 50 से ज्यादा है, उनको ये ध्यान में आएगा, ध्यान में आ सकता है, उनके स्मृति में हो सकता है कि जब राजीव गांधी ने इलेक्शन करना तय किया 1984 में, तब बहुत सारी कॉन्क्लेव्स बन रही थी ऑपोजिशन की, जॉर्ज फर्नांडिस, फारूक अब्दुल्ला, एनटी रामाराव, सब लोग इस तरह की कॉन्क्लेव, इन तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे कि राजीव गांधी तो पायलट है और राजीव गांधी बनने भी नहीं चाहते थे। सोनिया जी भी उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए खिलाफ थी। राजीव गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक ऐसे ही आ गए हैं इंदिरा गांधी के बेटे हुए, तो ये हार जाएंगे, उनके पास वो एनर्जी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप की। और उनको सबको लगता था कि राजीव गांधी 1984 में हारेंगे, लेकिन उनको ये आश्चर्य हुआ कि 1984 में उनको सबसे ज्यादा जो इतनी सीटें इंदिरा और नेहरू जी को मिली नहीं थी, उतने मिली और 4 से 14 सीट आ गए। तब उन्होंने धोखा समझा कि अभी जिस तरह से इंदिरा जी को खत्म करके हमने खत्म करने की कोशिश की इस विचारधारा को, उसी तरह राजीव गांधी को भी खत्म करना होगा। इसके लिए 1984 और 89 के बीच उनके ऊपर 2 हत्या के प्रयत्न हुए। वो जब यशस्वी नहीं हुए, तब उन्होंने बोफोर्स और अयोध्या कांड शुरू करके 1989 की इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस को हराया। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो कांग्रेस को हरा सके क्योंकि कांग्रेस ने खुद इस शक्तियों के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई करनी थी वो की नहीं। इसी के लिए वो जीत गए। और वो जीतने के बाद फिर से राजीव गांधी जब उतरे मैदान में 1991 के इलेक्शन में, तब उनको तो समझ में आया कि अभी एक ही मार्ग है, वो है राजीव गांधी की हत्या। शक्तियों की है, कौन सी पार्टी का नाम या कोई आदमी का नाम, कोई डेफिनेटली देश का नाम, एजेंसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ये ले रहा हूं कि ये जो शक्तियां हैं जो इस विचारधारा को खत्म करना चाहती है, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर ली है। लेकिन वो विचारधारा जब मनमोहन सिंह ने फिर से 2004 में शुरू की कि हम ग्लोबलाइज विचार करते हैं, हम लोकल विचार नहीं करते हैं। हम लोकल विचार करते हैं तो अलग बात है, हम ग्लोबलाइज विचार करते हैं। आज के लिए सब मेक इन इंडिया कहते हैं, कभी सेल्फ रिलायंस कहते हैं, आत्मनिर्भर कहते हैं, लेकिन ये सब विचारों का जन्म स्थान पंडित नेहरू की विचारधारा और 1947 के पहले फ्रीडम मूवमेंट में। अभी जिस तरह से विचार चल रहा है और जिस तरह से राजनीति चल रही, ये राजनीति का उद्देश्य सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करना नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही नहीं, इस रिपब्लिक के खिलाफ करते हैं। इस रिपब्लिक के खिलाफ भी नहीं, उनको पूरी फ्रीडम मूवमेंट की जो वैल्यू सिस्टम है,
अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है वो अल्टीमेट पॉइंट ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट है, जो 1850 से शुरू हुई है, लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद उसको एक तरह का आकार हो गया। और 1885 टू 1947 जो गांधी जी और बाद में 1936 के बाद तो पूरे पंडित नेहरू ही उसके नेता थे, और पंडित नेहरू के विचार ही कांग्रेस के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अभी ये लोग ये इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि नेहरू जी कोई नहीं थे, नेहरू तो एक देश का धोखा थे, तो देश का सम्मान कौन सकता था? सिर्फ सुभाष चंद्र बोस। अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि पंडित नेहरू उनके खिलाफ थे, पंडित नेहरू उनको आगे आना नहीं दे चाहते थे, लेकिन इनको यह भी मालूम नहीं है कि जो पहला प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट था उसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू साथ में थे, और वो फ्रीडम के पहले 15 बरस में थे। मुद्दा यह है कि इनका जो सामना है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का, आरएसएस का, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो एक विचारधारा के खिलाफ है। और इसके लिए इस विचारधारा को पंडित नेहरू ने जिसको आकार दिया, वो गांधी जी का स्वच्छता अभियान का नाम लेते हैं क्योंकि मालूम है 1948 में तो गांधी जी मर गए, उसके बाद जो देश चलाया गया है वो इस विचारधारा से चलाया गया है, और इसी के लिए इनको खत्म करना ये उनकी पहली पॉलिटिकल जिम्मेदारी लगती है। मुझे लगता है कि अभी 2014 में उनको जो यश प्राप्त हुआ है, वो यश प्राप्त होने का जो दौर अभी कर रहे हैं वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इसी का है, और इसी के लिए कांग्रेस को वो राहुल गांधी की विचारधारा को आज जरूर याद में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सब भारत के बाहर एनआरआई जिसको कहते हैं, जिसको प्रवासी नागरिक जो कहते हैं, वो प्रवासी नागरिक अपने खिलाफ उनका एक नया मिडिल क्लास हो गया, एनआरआई मिडिल क्लास हो गया, और अपने देश में जो मिडिल क्लास मेनली 1991 और उसके भी पहले 1984 के बाद जो नया मिडिल क्लास अपने देश में आया, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन मिडिल क्लास आया, उनके पर्सनल इनकम बढ़ गए। एक जमाना था यहाँ के 50 बरस जिनके हो गए उनको पता होगा कि घर में टेलीविजन होना इसका मतलब आप बहुत समृद्ध आदमी, आप रिच है, ऐसा माना गया था। अभी इस मिडिल क्लास के एक एक घर में 2-2 टीवी है। साइकिल भी मुश्किल था मिडिल क्लास के घर में होना, अभी एक एक कार, कभी कभी 2-2 कार और 1-2 मोटरसाइकिल्स है। ये सब जो आई है, समृद्धि आई है अपने मिडिल क्लास को, पूरा गरीब वर्ग को ये समृद्धि नहीं आई है, गरीब अभी भी लड़ रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास में ये समृद्धि आई है वो इस विचारधारा से आई है, और इस विचारधारा से जो अमेरिका में या यूरोप में गए उनकी जो समृद्धि आई है, वो समृद्धि के बारे में उनको ध्यान में नहीं आता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हमको किसने लाया, कौन सी विचारधारा ने लाया। इसी के लिए वहां एनआरआई जिसको कहते हैं, एनआरआई मिडिल क्लास और यहाँ का इंडियन मिडिल क्लास, उनके जो रिश्ते हैं, ऐसा अभी आजकल एक भी मिडिल क्लास फैमिली अपने देश में मिलेगा नहीं। गुजरात में तो मुझे लगता है हर एक फैमिली के कम से कम 1 या 2 लोग अमेरिका में है। महाराष्ट्र के मिडिल क्लास में भी कम से कम 1 या 2 लोग महाराष्ट्र मिडिल क्लास के अमेरिका में या यूरोप में है। ऐसा कोई भी भारत में कोई भी राज्य नहीं है कि जहाँ के मिडिल क्लास के सब रिश्ते यूरोप और अमेरिका में है। अभी यूरोप और अमेरिका में उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड है, उनका जो लिविंग स्टाइल है, वो लाइफ और स्टाइल उनको देख के यहाँ का मिडिल क्लास चाहता है। और ये जो मिडिल क्लास है जिसको कहते हैं न्यू मिडिल क्लास, न्यू रिच क्लास, ये न्यू रिच क्लास की भावना अब उनसे मिलती जुलती है, अपने देश के लोगों के साथ नहीं। इसी के लिए जब लॉकडाउन के बाद जो माइग्रेंट लेबर जा रहे थे, वो माइग्रेंट लेबर के बारे में इनके दिल में क्या दिलचस्पी थी, इस मिडिल क्लास के दिल में क्या दिलचस्पी थी? कुछ भी नहीं थी। इसी के लिए अपनी ब्यूरोक्रेसी हो, अपना मीडिया हो, मैं मीडिया में 40-50 वर्ष मैंने मीडिया में काम किया है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज कम से कम लास्ट 7 years आई कैन से, मीडिया इतना इनसेंसिटिव हो गया है, इतना प्रचारक ही हो गया है। और वो प्रचार वो किसका करता है? वो मीडिया प्रचार इसी विचारधारा का करता है कि जो विचारधारा नेहरू, इंदिरा, राजीव के खिलाफ है, और अभी सोनिया और मनमोहन सिंह के खिलाफ है। ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। और अपने हम जो कांग्रेस वाले लोग हैं, दो ये विचारधारा मानते हैं, तो हमको ही अलर्ट रहना है कि किसके साथ हमारी लड़ाई चालू है। और ये लड़ाई अब बढ़ गई है, बहुत डेंजरस हो गई है। जिस तरह से राम मंदिर हुआ, जिस तरह से ट्रिपल तलाक का बिल हुआ, जिस तरह से आजकल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है हर एक चीज में, जिस तरह से मीडिया कैंपेन कर रहा है, जिस तरह से पुलिस सिस्टम काम कर रही है, जिस तरह से ईडी के रेड्स हो रहे हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स रेड, उसके पीछे एक प्लान है। ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली कुछ हो रहा है,
राम जन्मभूमि हो या कोई ईडी हो, इसकी ये सब प्लान है और ये प्लान के साथ वो काम कर रहे हैं। अपने पास भी प्लान होना और वो प्लान अपने पास है नेहरू विचारधारा का, लेकिन वो पॉलिटिकल प्लान चाहिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान चाहिए, अपने लोगों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, मास कांटेक्ट होना चाहिए। आजकल कांग्रेस में मैं देखता हूं और मैं पत्रकार होते हुए मैं जानता भी हूं कि मास कांटेक्ट कांग्रेस का, मुझे याद है 1974 में जब जयप्रकाश मूवमेंट चालू थी तब इंदिरा ने एक आह्वान किया था कि मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू करो, और मास कांटेक्ट प्रोग्राम शुरू करने के बाद अभी 1977 में इलेक्शन हारने के बाद 3 बरस में इंदिरा गांधी वापस क्यों आ सकी? क्योंकि 1977 के बाद जो मास कांटेक्ट का प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था वो खुद से उन्होंने शुरू किया। 77 में जब दलितों के ऊपर बेलछी में अत्याचार हुए तब इंदिरा गांधी खुद बेलछी में गई। 3 महीने हुए थे पराभूत होने के बाद, लेकिन वो बेलछी में गई। उसके बाद उन्होंने पूरा देश में दौरा किया और पूरे देश के लोगों के साथ बात की, चर्चा की, सभाएं ली, और इसी के वजह 1980 में वो वापस आ गए। नहीं तो 1977 में ही कांग्रेस मुक्त देश हो रहा था। तो कांग्रेस मुक्त देश हुआ नहीं क्योंकि इंदिरा गांधी ने तब पूरे देश में कैंपेन किया और लोगों के साथ मास कांटेक्ट पॉलिसी अपनाई। अभी वो मास कांटेक्ट पॉलिसी मुझे लगता है, कोई आप इसका ये मत मानिए, मुझे लगता है कि ये मास कांटेक्ट पॉलिसी अपनी पार्टी जितनी एफिशिएंटली करनी चाहिए उतनी कर नहीं रही है। और इसी के लिए अभी हम देखते हैं देश की तरफ तो बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस है ही नहीं, इसका मतलब है कि कांग्रेस पावर में नहीं है, कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। लेकिन ऐसा एक भी तालुका आपको देश में नहीं मिलेगा जहां फ्रीडम मूवमेंट से रिश्ता जिसका है वो कांग्रेस वाला वो तालुका में नहीं है। कम होंगे अभी शायद, लेकिन उनका कंटिन्यूअस रिलेशनशिप लोगों के साथ कांग्रेस का रहा है। लेकिन वो हम अभी समर्थ करना चाहिए, वो अभी बढ़ाना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। वो कंसोलिडेट करने का काम सिर्फ मास कांटेक्ट से हो सकता है, और वो मास कांटेक्ट सिर्फ लीडरशिप नहीं कर सकती है, सिर्फ कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है, सिर्फ कोई अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर सकता है, प्रदेश ट्रेजरर सेक्रेटरी नहीं कर सकता है। वो हर एक कांग्रेस वॉलंटियर का काम है कि अपना मास कांटेक्ट होना चाहिए। अभी जब प्रचार होता है नेहरू जी के खिलाफ, नेहरू फैमिली के खिलाफ, वो प्रचार का सामना करने के लिए हमको उतरना चाहिए। हम उतरते नहीं, जितनी एनर्जी से हम उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि राजीव गांधी की जो लीगेसी है वो टेक्नोलॉजी की लीगेसी अब मोदी ने इस तरह से आत्मसात की है कि जैसे कि उन्होंने ही मोबाइल फोन का इन्वेंशन किया, उन्होंने ही कंप्यूटर इरा लाया। जिस तरह से मोदी टेक्नोलॉजी की और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वो एक मिनट भी, एक सेकंड भी ये नहीं मानते कि इसकी जो परंपरा है, इसकी जो इंस्टीट्यूशनल बेस है, ये जो विचार है, ये कहां से आया है, कहां से हम डिजिटल इंडिया की बात कर सकते हैं। और इसी के लिए जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन यशस्वी होता है, अपना कैंपेन यशस्वी नहीं होता, इसके लिए सिर्फ आरएसएस, बीजेपी और अपोजिशन को जिम्मेदार धरना, अपने खिलाफ जो उनके जिम्मेदार धरना बराबर नहीं है। हम खुद कुछ भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये विचारधारा नहीं लेते। राजीव गांधी के बारे में एक 21st सेंचुरी का जो मुद्दा है, वो 21st सेंचुरी के बारे में अभी आजकल कम से कम 1995 के बाद लास्ट 25 इयर्स में कम से कम 500 बुक आए हैं दुनिया में, बुक पब्लिश हुए हैं कि 21st सेंचुरी के इश्यूज कौन कौन से हैं। और ये 21st सेंचुरी के जो जो इश्यूज है इसके बारे में जो बुक्स पब्लिश हुई है, जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वो सब विचार 1985 टू 1989 में राजीव गांधी के भाषण में है, राजीव गांधी के वक्तव्य में है। लेकिन वो हम कभी नहीं पढ़ते। जब इस तरह की जयंती आती है या कोई पुण्यतिथि आती है तब हम उनकी याद करते हैं, लेकिन उनकी याद इनफ नहीं है। उनके जो विचार है राजीव गांधी के, जैसा आपने फिल्म में बहुत अच्छी तरह बताया था, वो विचार जितने लोगों तक जाने चाहिए वो जाते नहीं है। और एक मैं उदाहरण देता हूं, आज अभी एक भी अपने देश में लेडी नहीं है। इतने बलात्कार होते हैं, इतने अत्याचार होते हैं, फिर भी ऐसी एक भी लेडी नहीं कि जिसके पास मोबाइल नहीं है। जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अंग्रेजी नहीं जानती है, वो अंग्रेजी मोबाइल हाथ में लेके घूमती है और फोन भी करती है। मतलब एक तरफ उनके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ सोसाइटी बैकवर्ड है। एक तरफ अपने साथ हर एक बिहार, यूपी, हर एक जिले में, हर एक राज्य के हर एक जिले में मोबाइल फोन है और बहुत जगह कंप्यूटर भी आया है। मैंने तो देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 1989 की इलेक्शन में हम जाते थे तो फैक्स भी करना मुश्किल था क्योंकि फैक्स मशीन में नहीं था। 1998 के इलेक्शन में हम मोबाइल फोन से रिपोर्ट नहीं कर सकते थे,
हम पूरा इंटरनेट सिस्टम ही नहीं था, और वो इंटरनेट सिस्टम जब बना है उसका जो फाउंडेशन है वो 1980s में बनाया, 1996 के बाद बढ़ गया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उसका पूरा विस्तार पूरी दुनिया तक हो गया, और इसी के वजह भारत का नाम और या भारत के टेक्नोलॉजिस्ट का नाम वहां गया। लेकिन जिन्होंने इसका फाउंडेशन शुरू किया उन लोगों को कितनी तकलीफ हुई, आप शायद भी पढ़ोगे तो समझे कि ये आसान लड़ाई नहीं थी, वो अपने ही लोगों के साथ लड़ना था, क्योंकि अपने ही लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे। तो मुझे लगता है राजीव गांधी जी को स्मरण करना है, राजीव गांधी या पूरे नेहरू विचारधारा को स्मरण करना है, तो हमको ये पॉलिसी का स्मरण करना है, ये विचारधारा का स्टडी करना है। और ये सिर्फ विचारधारा का स्टडी नहीं करना है, आजकल तो स्टडी सर्कल होते ही नहीं है। कांग्रेस के स्टडी सर्कल होते थे पहले, अभी कांग्रेस सर्कल नहीं, और जिस तरह से मैंने बताया इंदिरा वो भी नहीं होता है। तो अभी इस तरह के बुकलेट्स, इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के स्पीचेस, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, ये सब होनी चाहिए, तभी हम राजीव गांधी को न्याय दे सकते हैं, इंदिरा गांधी को न्याय दे सकते हैं, पंडित नेहरू के और फ्रीडम मूवमेंट को न्याय दे सकते हैं। जब तक मोदी है तब तक धोखा सिर्फ नेहरू फैमिली को नहीं है, तब तक रिपब्लिक को ही सिर्फ नहीं है, तब तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं है, वो पूरा फ्रीडम मूवमेंट का जो हिस्ट्री है, वो फ्रीडम मूवमेंट का हिस्ट्री इरेज करना चाहते हैं, पूरे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो फ्रीडम मूवमेंट आरएसएस थी ही नहीं, आरएसएस फ्रीडम मूवमेंट में आई नहीं, आरएसएस लोग तो ब्रिटिशों की मदद कर रहे थे। अभी उनको लगता है कि ये फ्रीडम मूवमेंट अब हमने ही, मतलब आरएसएस नहीं की, इस तरह का इतिहास करने के लिए, इस तरह का इतिहास लोगों के सामने लाने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई है। केतकर सर, पॉलिसी का मतलब यह है कि हमको नेहरू की विचारधारा मानने नहीं और गांधी जी की विचारधारा भी मंजूर नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है इतिहास, पूरा इतिहास नहीं बदलेंगे, इतिहास का जो लेखन है वो पूरा बदल देंगे, टेक्स्ट बुक बदल देंगे, और लोगों को बताएंगे कि ये गांधी नेहरू ने कुछ नहीं काम किया है, ये तो ज्यादातर काम हिंदू राष्ट्रवादियों ने किया है, और हिंदू राष्ट्रवादियों का सरकार आना यही उनका उद्देश्य है। मुझे लगता है हम अभी भी नहीं सतर्क रहेंगे, नहीं सामना करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र, यही राज्य घटना रख के भी वो हिंदू राष्ट्र ला सकते हैं। जैसे कि अभी वो आज वो राज्य घटना बदलने की बात नहीं करते हैं, लेकिन राज्य घटना बदलने के बाद जो करेंगे वो राज्य घटना बदलते न हुए भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये धोखा जो है, ये सिर्फ नेहरू फैमिली को नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, सिर्फ अपने रिपब्लिक को नहीं, वो फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज को है। और इसके वजह भारत का जो नाम पूरे देश में शांति के लिए था, शांति की चर्चा के लिए था, वो भारत अभी नॉन अलाइनमेंट छोड़ के हम अभी एक ही देश के, एक ही समर्थ देश के पीछे पड़े हैं, दो समर्थ देश के पीछे पड़े हैं, और उस तरह से नॉन अलाइनमेंट छोड़ दिया है, सेक्युलरिज्म छोड़ दिया है, डेमोक्रेटिक सिस्टम छोड़ दिया है। अभी तो हम चर्चा भी सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर भी हल्ला हो रहा है, वो शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं। अभी तो पूरी एकाधिकारशाही, अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल सिस्टम वो ला रहे हैं। इसका कारण यह है कि ऐसी डिक्टेटोरियल सिस्टम को नहीं लाएंगे वो, तो ये विचारधारा खत्म नहीं कर सकते हैं। ये विचारधारा का संघर्ष है, और ये विचारधारा के संघर्ष में एक महान यात्री थे, वो राजीव गांधी थे, और उनकी हत्या ये विचारधारा के खिलाफ जो साजिश है उससे बनी है। तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, अभी तो ज्यादा ही सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस सरकार ऐसे ही रहेगी तो और भी 4 बरस उनके बाकी है। ये 4 बरस में ये इतना डैमेज कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को, अपने पुलिस सिस्टम को, अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने जुडिशरी को, मीडिया को तो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो हर एक जगह वहां आप लोग हैं, हो एनजीओ में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मीडिया में हो, हर एक जगह में हर एक आदमी को अभी बहुत सतर्क रहना है, तभी हम राजीव गांधी को न्याय दे सकते हैं। राजीव गांधी के 77 के ये जयंती के ऊपर इतना ही मैं कह सकता हूं, और मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी साथे આપણા આદરણીય नेता આદરણીય અહમદભાઈ પટેલ સાહેબ જોડાયા છે, હું એમને આવકારું છું, અને ખાસ કેતકરજીનો આભાર માનીએ છીએ કે એમણે ખૂબ સુંદર વાત કરી છે અને ઘણી નવી યુવા પેઢીને માર્ગદર્શિત કર્યા છે। આદરણીય અહમદભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને આપ જન્મ જયંતિ નિમિત્તે માર્ગદર્શિત કરે। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा जी,
परेश दानानी जी, राजीव सातव जी, हमारे अतिथि कुमार केतकर जी, देवगांवकर जी, उपस्थित मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, बोलते वक्त मैं समझता हूं कि राजीव जी का कम उम्र में चले जाना, इससे बहुत बड़ी क्षति कोई हो ही नहीं सकती। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, न सिर्फ नेहरू गांधी परिवार को, बल्कि पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। राजीव जी अगर आज जिंदा होते तो 75 साल के होते। जैसे बहुत ही कम समय था उनके पास और कम समय में उनको बहुत कुछ करना था, और मेरे ख्याल से 5 साल में उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखाया है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बनना। ऐसी हस्तियां बार बार जन्म नहीं लेती, और जन्म लेती है तो देश को, समाज को कुछ न कुछ दे के जाती है। कुमार केतकर जी ने हमारी कांग्रेस की विचारधारा, आजादी की लड़ाई, उसके बाद पंडित जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और आज क्या साजिश हो रही है। जो लोग आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, आज कौन कौन सी साजिश रच रहे हैं, और वही साजिश के तहत सिर्फ हमारे नेताओं को भुलाना चाहते हैं, कुछ नेताओं को दत्तक लेना चाहते हैं, एडॉप्ट करना चाहते हैं, बल्कि पूरे देश को जिन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है, और न सिर्फ नेताओं को बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कुमार केतकर जी ने बताया, कि न सिर्फ इतिहास को भुलाना चाहते हैं बल्कि इतिहास को तहस नहस करके विकृत तौर पे रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इतिहास को फिर से ये लोग लिखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि उनको तो पता है नहीं कुछ कि आजादी की लड़ाई क्या थी, आजादी के बाद इस देश को आर्थिक तौर पे आजाद करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या नहीं किया। पंचवर्षीय योजना से शुरुआत करके राजीव जी ने, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इसमें इंदिरा जी, बाकी जो भी हमारे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और जो भी कुछ किया, तब उन्होंने न तो अपने आप को सेंटर में या केंद्र में रखा, न अपने निजी स्वार्थ को केंद्र में रखा, बल्कि उससे ऊपर राष्ट्र को उन्होंने सबसे ऊपर रखा, मानव कल्याण को सबसे ऊपर रखा। वो इनकी दीर्घदृष्टि थी। और जो लोग आज सत्ता में हैं, आजादी की लड़ाई में तो कहीं थे नहीं, इतिहास के पन्नों पे कहीं उनका कोई जिक्र है नहीं। तो इतिहास के पन्नों में नया इतिहास लिख के अपना नाम ये लोग लिखवाना चाहते हैं। और उसी लिए सबसे पहले उनको क्या करना होगा? करना यही होगा कि कांग्रेस की विचारधारा को खत्म करनी होगी। हमारे नेताओं ने जो कुछ किया उसको भुलाना होगा, उसको तहस नहस करना होगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन नेताओं को ही ये लोग भुलाना चाहते हैं। और ये जब ये सब बातें कर रहे हैं तो हमें पंडित जी की याद आती है, इंदिरा जी की याद आती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की याद आती है, नरसिम्हा राव जी ने जो कुछ किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ किया, और राजीव जी की जो याद है हमें बहुत सताती है। क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उस राजनीति में आना नहीं चाहते थे, अनायासी राजनीति में आ गए। जब आ गए तो मिस्टर क्लीन की तरह उनकी इमेज बन रही थी। उस इमेज को खत्म करने के लिए, जैसे केतकर जी ने कहा, किस तरह से इस इमेज को डेंट किया जाए, उसी में लगे रहते थे। क्योंकि उनको लगता था कि अगर इनकी इमेज को डेंट नहीं करेंगे तो सालों तक राजीव जी प्रधानमंत्री रह सकते हैं, कांग्रेस सत्ता पर रह सकती है। कहीं ना कहीं से कांग्रेस को तोड़ने की किस कोशिश की, वीपी सिंह जी को अलग किए, बॉफोर्ट्स ले आए और उनकी इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन राजीव जी नहीं गए। राजीव जी का क्या सपना? राजीव जी का सपना यही था कि मैं खुद युवा, मेरा देश युवा है,
और मेरा देश, मेरा राष्ट्र इतना मजबूत बने, ताकतवर बने, शक्तिशाली बने कि किसी भी महासत्ता का या किसी भी चुनौतियों का सामना कर सके। वो जानते थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि अतीत भले ही पश्चिम का रहा हो, वेस्टर्न का रहा हो, लेकिन आने वाली कल पूर्व की है। और पूर्व की जब वो बात कर रहे थे तो उनका जिक्र जो था चाइना, हिंदुस्तान और जापान की तरफ था। पाकिस्तान की कोई ऐसी उनकी हस्ती ही नहीं है हमारे सामने। तो वो तो कभी भी हम ये कर सके, इंदिरा जी ने करके दिखाया, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता। लेकिन राजीव जी की जो दीर्घ दृष्टि थी, सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो जनरल सेक्रेटरी पहले बने, हिंदुस्तान को समझने की उन्होंने कोशिश की। मुझे याद है, मैं तो उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी लगा हुआ था। जब प्रवास में जाते थे तो 200, 250, एक दिन तो 300 किलोमीटर का उन्होंने प्रवास किया। पूरे 24 घंटे, सुबह 6 बजे पहुंचे थे। गुजरात की मैं बात करूं तो बनासकांठा, पालनपुर, कहीं पे किसी गांव में पहुंचे थे। तो उन्होंने पहले हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की। हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं उनकी झोंपड़ी में जाके झांकने की कोशिश की, तो उनकी क्या हालत है, उनकी क्या स्थिति है। क्योंकि सबसे पहले जो देश में लोग हैं उनको ऊपर उठाना था आर्थिक तौर पे, और उन्होंने कार्यक्रम दिए। एज ए ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी ऑल्सो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया। उसके साथ साथ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका जो अनुभव था, उनका जो एक्सपीरियंस था, जो गांव गांव घूमे हुए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस देश को अगर मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो हमारी जो युवा शक्ति है, वो युवा शक्ति को सकारात्मक ढंग से उनको काम पे लगाना होगा। उन्होंने रोजगारी की बात की, और खास तौर पे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी मिशंस की जो बात की, चाहे वो कंप्यूटर का मामला हो, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, चाहे वो ऑयल सीड्स का मामला हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का मामला हो, बच्चों को रसी दिलाने का काम हो, चाहे वो देश में दूध की पैदावार कैसे ज्यादा हो उसका मसला हो। तो इन पे उन्होंने मिशन बनाए अलग अलग टेक्नोलॉजिकल, और इसके रिजल्ट भी आए, इसके नतीजे भी आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ इस देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, उनको वोटिंग राइट दिया, कोई छोटी बात नहीं थी। उसके बाद महिलाओं को आरक्षण की बात की, लोकल बॉडीज, जो हमारी पंचायत राज को उन्होंने समृद्ध बनाया। वो जानते थे कि जहां तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो सपना था, जब आजादी मिली तब गांधी जी ने एक बात कही थी। जो सत्ता में लोग आए, जब गांधी जी के पास गए और पूछा उनको कि बापू आजादी तो आ गई, लेकिन आजादी के बाद क्या, हमें क्या करना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक मंत्र दिया, और मंत्र ये था कि जब भी आप इस देश में किसी प्रकार का प्लानिंग करो, आयोजन करो, तो इस देश का जो बिल्कुल आखिरी आदमी, आखिरी इंसान है, उनको आपको मद्देनजर रखना है। आजादी का प्रकाश उनकी झोंपड़ी तक पहुंचे, हर एक के पास पहनने के लिए कपड़े हो, तन ढांकने के लिए, खाने के लिए अन्न हो, और रहने के लिए छत हो। और आप जानते हैं पंडित जी ने भी मेहनत की, उसके बाद इंदिरा जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया, उसके तरह उनकी भी चिंता की गई। और राजीव जी खास तौर पे तब मजाक उड़ाते थे, गडकरी जी ने सही बात कही, जब कंप्यूटर की बात हुई, बाकी चीजों की बात हुई, तब कहते थे कि ये तो कंप्यूटर बॉय है, ये क्या करेंगे, इससे तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है छीन जाएगा। लेकिन आज ही जो लोग सत्ता में है वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे गडकरी जी ने बताया, उसका श्रेय राजीव जी को नहीं देना। जो कुछ काम हो उसका श्रेय पंडित जी को, इंदिरा जी को, शास्त्री जी को, बाकी लोगों को नहीं देना, लेकिन उसका श्रेय खुद लेना और बिना कुछ किए श्रेय लेना है। उनके काम भुलाने हैं। हमारी जो योजनाएं थी उनको दूसरा नाम देके उन्होंने दूसरे तरीके से ये योजनाएं रखी। आज क्या रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। गुजरात तो बर्बाद किया ही इन्होंने, लेकिन देश को भी बर्बाद कर दिया।
बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लानिंग के ये लोग आयोजन करते हैं। आते ही प्लानिंग बोर्ड को खत्म कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जो भी कुछ करके गई है उसको कैसे भुलाया जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए। वो जानते थे, आरएसएस तब बात कर रहे थे कि पंडित जी इतने पॉपुलर है कि पंडित जी को तब वो लोग टच नहीं कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि पंडित जी का निधन हो, उसके 25 साल बाद अगर पंडित जी के खिलाफ कुछ भी करेंगे तब लोग मानेंगे। और एग्जैक्टली उन्होंने 25 साल के बाद ही पंडित जी के खिलाफ जिस तरह से उनके चारित्र पे आरोप लगाने की कोशिश की, उनकी पूरी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश की, एज इफ के पंडित जी ने देश को बर्बाद कर दिया। और बार बार एक ही बात, सोशल मीडिया, बाकी जरिए, आरएसएस, एक ही बार झूठ बात करना। अरे यहां तक कि कह दिया कि पंडित जी तो मुसलमान थे, इंदिरा जी ने मुसलमान से शादी की थी। अरे कोई जाके अगर जहां जहां हमारे यात्रा के धाम है वहां जाके देखें, आप जानते हैं हर एक यात्रा के धाम पे अलग अलग पंडाल होते हैं। जैसे दरगाह शरीफ पे जाते हैं तो मुरीद, वो उनके जो भी है ये होते हैं, उसी तरह हर एक यात्रा के धाम पे उनका जो भी है पंडा होता है। और हम देखेंगे कि हर जगह पे मोतीलाल नेहरू जी गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए हैं, इंदिरा जी गए हैं, वहां उनका लिखा हुआ ये है। जब इंदिरा जी की शादी हुई और जिस सरदार पटेल को पंडित जी ने जो चिट्ठी लिखी वो इनविटेशन का ये थे, केतकर जी को तो मालूम होगा, रामनवमी के दिन ये तारीख को ये हिंदू की शादी इसके साथ होने वाली, आप उसमें जरूर आए। सरदार पटेल और पंडित जी की जो रिलेशन थी और किस तरह से थी कि अपना धर्म अपने घर में रखते थे, अपने दिल में रखते थे। जब राष्ट्र का मामला होता था तो ही वॉज अ फर्स्ट क्लास सेक्युलर, बिन सांप्रदायिक में मानते थे वो। और तब तो देश ने इतनी तरक्की की और पूरे परिवार ने इस तरह से सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाया। तो ये लोग ये सारी चीजें भुलाना चाहते हैं, सारी चीजें खत्म करना चाहते हैं। और राजीव जी ने जो कुछ किया, जैसे उनके पास समय कम था और कम समय में वो बहुत कुछ करना चाहते थे और बहुत कुछ करके दिखाया। और ये क्या ले आए? जीएसटी ले आए, नोटबंदी ले आए। जिस तरह से जो कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक के समय में जिस तरह से उन्होंने इसका सामना किया, जिस तरह से बाकी चीजों का और किसान भाइयों को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे माइग्रेंट जो थे उनको जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया। लेकिन सबसे पहले काम इन्होंने क्या किया सत्ता में आने से पहले, क्योंकि बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे कि अगर चुनाव जीतना है या लंबे अरसे तक सत्ता में बैठे रहना है उसके लिए पैसे चाहिए। 6 साल में इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि जितना भी हो सके करप्शन करके पैसे बनाइए। नोटबंदी में पैसे बनाए, एनपीए में पैसे बनाए, बाकी चीजों में पैसे बनाए। तो जब सत्ता में नहीं होंगे तब ये सारी चीजें बाहर आए। कांग्रेस पार्टी इतने साल से सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन हमने कभी भी 500-600 करोड़ से ज्यादा की एफडी नहीं देखी। एज ए ट्रेजरर मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। और इनके पास 6 साल में सारे हेडक्वार्टर बना दिए डिस्ट्रिक्ट में। इतना ही नहीं, एफडी अगर दिखेंगे तो करोड़ों रुपए की एफडी है उनके पास, करंट अकाउंट में पैसे हैं, कैश है उनके पास, इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। और इसी पैसे के जरिए मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। जुडिशरी की क्या हालत है हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो सारा कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की है। राजीव जी अगर आज जिंदा होते, इंदिरा जी अगर आज जिंदा होती, एक नौबत नहीं आती। तो जैसे केतकर जी ने कहा है कि कांग्रेस के सामने और खास तौर पे हमारी जो युवा शक्ति, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारी सोशल मीडिया ने शुरू की है धरोहर, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग जो एलिगेशंस कर रहे हैं,
जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उसका बहुत बारीकाई से स्टडी करने की जरूरत है और उनकी एक एक चीज को काउंटर करने की जरूरत है। जैसे केटकर जी ने बताया कि सिर्फ एक बार जब जन्मदिन हो हमारे राष्ट्रीय नेताओं का या उनकी पुण्यतिथि हो उसी दिन उसके याद करने से काम होने वाला नहीं। इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना होगा। और ये जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है आरएसएस, इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग अपना इतिहास बनाना चाहते हैं, बहुत जैसे कि आज चैलेंज, जैसे इन्होंने कहा कि नेम पूरा खत्म कर दिया उन्होंने, सेक्युलरिज्म को खत्म कर रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, बाकी एजेंसियों के जरिए जिस तरह से हमारे जो प्रतिपक्ष है उनको खत्म करने की कोशिश करें। आज लेवल प्लेइंग फील्ड है ही कहां, ग्राउंड है कहां इनके पास इतने पैसे हैं, एजेंसी है, जुडिशरी है, मीडिया है, और हमारे पास क्या है? लेकिन हमारी भी गलती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें करप्शन करना चाहिए था, पैसे बनाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से आज ये लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं अपने लोगों को हर एक डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, हमें अगर कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को आगे किया होता, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे बाकी जगहों पे हो, तो आज इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसे जो भी उनको लगता है कि जो लोग सेक्युलरिज्म में मान रहे हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस के मिलती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे मीडिया में हो, एक एक करके गिन गिन के सबको हटा रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती। और आज के दिन हमारा संकल्प यही हो सकता है, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी आ गया है, रात दिन मेहनत करनी होगी। ऐसा ना हो कि जब चुनाव आए तो हम एक्टिव हो जाते हैं, या बाकी कोई ऐसा कोई प्रसंग आ जाए तब हम एक्टिव हो जाते हैं। इससे काम चलने वाला नहीं है। दिन रात मेहनत करनी होगी, अपने आप को कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित करना होगा, इस विचारधारा को आगे लेके चलना होगा। और उसके साथ साथ जो कांग्रेस ने किया है, हमारे नेताओं ने जो किया है, जो सही बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचानी होगी। अगर इसके लिए हम आयोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इन लोगों का हम सामना कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा सवाल नहीं है, सवाल पार्टी का नहीं है यार, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। आज सवाल देश का, राष्ट्र का है। जिस तरह से विदेश नीति को तहस नहस कर दी है इन लोगों ने, हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ जो रिश्ते होने चाहिए वो नहीं रहे। इनकी जो पॉलिसी है टोटल, जिसे कहते हैं फायर फाइटिंग, एडवोकेज्म पे चल रही है। कभी उसको खुश करने के लिए कुछ कर दिया, कभी वो कंट्री को खुश करने के लिए कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी ने जो दौरा किया है उस पर अगर व्हाइट पेपर निकाला जाए तो हमें पता चलेगा कि कौन से राष्ट्र को कितनी मदद की है। जब हमारे लोग, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे गरीब लोग, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, व्यापारी हो, आज उनकी क्या हालत है। लेकिन क्या है कि सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करनी है। मैं अच्छा दिखना चाहता, मैं पॉपुलर होना चाहूँ, और उसीलिए हर तरह के गिमिक्स जिसे कहते हैं, हथकंडे जैसे कहते हैं, वो हथकंडे किए जा रहे हैं। और लोग मानते हैं, जनता मानती है, क्योंकि एक वातावरण, एक माहौल ऐसा तैयार किया है, मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सबके सामने हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमारी रणनीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ भाषण करने से काम नहीं चलेगा, फील्ड में जाना होगा। एजुकेशन में जिस तरह से पेनिट्रेशन किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। और सालों से आरएसएस और उनकी शाखाएं वहां पे ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं, और जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, आज आरक्षण के सामने बहुत बड़ा खतरा है। बहुत टैक्टफुली ये लोग जा रहे हैं। तो ये भी हमें समझना होगा। किसानों को सिर्फ बात करते हैं लेकिन मिला कुछ नहीं, खत्म हो रहे हैं। लेकिन इतनी सारी रियलिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये लोग अपने प्रपंच से, युक्ति प्रयुक्तियों की वजह से चुनाव जीत जाते हैं। तो इसका
कड़ा मुकाबला अगर करना है तो हमें हमारी कैडर को तैयार करना। राजीव जी ने कहा था जब मुंबई में जो शताब्दी अधिवेशन हुआ था कि हमारी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है तो कांग्रेस को एक जबरदस्त आंदोलन में परिवर्तित करना होगा और हमारे संगठन को प्राथमिक इकाई से लेके ब्लॉक से लेके जिला स्तर से लेके प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक एक सक्षम संगठन बनाना पड़ेगा और एक ऐसा सक्षम संगठन के किसी प्रकार के चुनौतियों का मुकाबला कर सके। उन्होंने 1985 में ये बात कही थी मुंबई में शताब्दी अधिवेशन में, उन्हें पावर ब्रोकर की बात कही थी। तो जो जो रियलिटी थी, जो प्रैक्टिकल बातें थी उन्होंने उस वक्त कही थी। इस सबको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से हमें कुछ आयोजन करना होगा, रणनीति बनानी होगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर किसी का है तो हमारे पीसीसी का रहेगा, हमारे डीसीसी का रहेगा, हमारे ब्लॉक को रहेगा, क्योंकि इट्स फुल टाइम जॉब, 24 घंटे का काम है ये। ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए कि जो कमिटेड हो, जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस के विचारधारा के प्रति समर्पित किया हो, ऐसे लोग जाएंगे। क्योंकि फील्ड में जाके ब्लॉक में, तहसील में, विलेज में कम से कम महीने में या 6 महीने में 4 महीना लगाना होगा, महीने में 20 दिन लगाने होंगे, उनके बीच में जाना होगा। और मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम की बात की, अभी तो कोरोना की वजह से नहीं कर रहे हैं, बट बहुत सही बात की केतकर जी ने। हमें सिर्फ मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम सिर्फ घर तक नहीं, लेकिन घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक जाना होगा, उनका संपर्क करना होगा और उसके लिए जो भी मैकेनिज्म बनाना हो, मैकेनिज्म बनाना हो। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पहले के प्रवक्ता ने भी, केतकर जी ने भी काफी कुछ बातें कही, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन आज मुझे बुलाया, 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए पीसीसी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। થેન્ક યુ સર. આદરણીય અહમદભાઈ પટેલ સાહેબનો આપણે આભાર માનીએ છીએ કે એમનો કિંમતી સમય આપીને આપણને સૌને રાજીવજીના જીવન વિશે, કાર્યો વિશે અને આવનારા કાર્યક્રમ માટે માર્ગદર્શિત કર્યા. આદરણીય અહમદભાઈ સાહેબનો આભાર માનીશ. હવે હું વિનંતી કરું આપણા ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠન પ્રભારી, રાજ્યસભાના સાંસદ આદરણીય રાજીવ સાતવજીને એ પણ આના પવિત્ર દિવસે આપણને સૌને માર્ગદર્શિત કરે. આદરણીય સાતવજી. आज के इस वेबिनार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हम सबके नेता आदरणीय अहमद पटेल साहब, जिनका हमने यहाँ पर मार्गदर्शन सुना, आदरणीय केतकर साहब, जिन्होंने कई सालों तक पत्रकारिता में और गांधी और नेहरू का जो विचार है वो पूरे देश में पहुँचाने का केतकर जी ने काम किया। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अमित भाई, विपक्ष के नेता परेश भाई और सभी गुजरात के सभी यहाँ पर इस वेबिनार को सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज राजीव जी की जयंती है, राजीव जी को आज हम नमन करते हैं और अगर आज राजीव जी हम सबके बीच में होते तो वो 76 साल के होते और हम सबका नेतृत्व करते हुए नजर आते। आदरणीय पटेल साहब ने और आदरणीय केतकर साहब ने राजीव जी की जीवनी पर प्रकाश डाला है और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में हम सब ने आगे कैसे जाना चाहिए इसकी भी चर्चा हुई है। मैं ज़्यादा लंबा समय इसमें लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन गुजरात की कांग्रेस एक वाइब्रेंट आंदोलन के रूप में पहले रही। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल साहब, इन्होंने जो लीडरशिप दी वो सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश में और विश्व में इसकी चर्चा रही। सरदार साहब के कई सारे बुक्स बीच में मैंने पढ़ने का मुझे मौका मिला। सरदार साहब ने जो आरएसएस के बारे में बात की, गांधी जी ने जो बात की और नेहरू जी ने जो बात की, उसी बात को राजीव जी ने हर वक्त आगे लेकर गए। और ख़ास तौर से यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की मैं बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शिक्षा में बदलाव राजीव जी ने लाया और नवोदय विद्यालय के माध्यम से लाखों युवाओं के भविष्य बदले। जिनको, जो गरीब छात्र थे, जो मध्यम परिवार के छात्र थे, उनको क्वालिटी एजुकेशन देने की बात राजीव जी ने की और पूरे देश के नवोदय विद्यालय से लाखों छात्र जो बाहर निकले हैं वो आज इस देश के बड़े जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो। और इसीलिए खास तौर से जो केतकर साहब ने यहाँ पर बोला और पटेल साहब ने भी उसको दोहराया कि सिर्फ भाषण देकर ये काम नहीं होगा,
राजीव जी का विचार हम लोगों में भी लेकर जाए, और खास तौर से गुजरात में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने किया, पिछले 25-26 साल से सरकार वहां पर है। आपने देखा होगा सूरत में पानी है, गुजरात के हर एरिया में विकास नाम की चीज नहीं दिख रही है, और झूठ बोल के, बार बार झूठ बोल के ये काम गुजरात में चालू है। तो इसलिए आने वाले समय में राजीव जी का ये विचार लेकर, राजीव जी का विचार क्या था, टेक्नोलॉजी का था। आज मोबाइल हर साथी के हाथ में मोबाइल है। वो मोबाइल यानी जब जब मोबाइल की रिंग बजती है तो वो राजीव जी की याद दिलाती है। जब जब हम व्हाट्सएप और फेसबुक की तरफ देखते हैं तो वो राजीव जी की हम सब के लिए देन है, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए हम सब लोग आज राजीव जी की इस जयंती पर हम आज प्रण करें, और वो प्रण हो, हम राजीव जी के विचारों पर तो चले, लेकिन जो झूठ का प्रसार हो रहा है, जो सच्चाई से परे लेकर जाने की बात हो रही है, इसके खिलाफ की जंग हम आज तेज करने की दिशा में जाए, इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। फिर से आदरणीय केतकर साहब और आदरणीय पटेल साहब इस वेबिनार में यहाँ पर उपस्थित रहे, इसलिए उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम आज से नया संकल्प ले, ये संकल्प एक नया गुजरात बनाने की दिशा में हम लेकर जाए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सातव जी, आपने अपना कीमती समय दे के आज के ये पवित्र दिन पे सबको मार्गदर्शित किया। હવે હું વિનંતી કરીશ આપણા વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા ભાઈ શ્રી પરેશભાઈને કે આખા આ વેબિનાર કાર્યક્રમનું સમાપન કરે અને સૌની આભાર વિધિ પણ કરે. ઓકે પરેશભાઈ. ખૂબ ખૂબ આભાર. સ્વર્ગીય રાજીવ ગાંધીજીની 76મી જન્મ જયંતિ પ્રસંગે ગુજરાત કોંગ્રેસ આયોજિત આજના વેબિનારમાં ખાસ ઉપસ્થિત આપણા સૌના માર્ગદર્શક આદરણીય અહમદભાઈ પટેલ સાહેબ, પૂર્વ વરિષ્ઠ પત્રકાર, મુખ્ય વક્તા અને માનની સાંસદ આદરણીય કુમાર કેતકર સાહેબ, આપણા સૌના પ્રભારી આદરણીય રાજીવ સાતવ સાહેબ, પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રમુખ અને સન્માનની સાથી માનની અમિતભાઈ ચાવડા, અને આ વેબિનારમાં જોડાયેલા સૌ પરિવારજનોનો અંતર્મનથી આવકારવા સાથે આજ 21મી સદીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ભારત રત્ન અને પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગીય રાજીવ ગાંધીજીની જન્મ જયંતિ પર સૌને કોટી કોટી વંદન કરું છું. આજ આદરણીય કેતકર સાહેબ, આદરણીય હેમંતભાઈ સાહેબ, સાતવજીએ ખૂબ વિસ્તૃત રીતે વાત કરી છે. રાજીવજી એ કોમ્પ્યુટરના આવિષ્કારથી ટેકનો યુગનો મજબૂત પાયો નાખ્યો, સંચાર ક્રાંતિથી સમગ્ર વિશ્વને મુઠ્ઠીમાં ભરવાનું કામ કર્યું, પંચાયતી રાજથી સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણને આગળ વધાર્યું, મતાધિકારથી યુવાનોને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં ભાગીદાર બનાવ્યા, સમગ્ર વિશ્વમાં અખંડ ભારતની અલગ ઓળખ ઊભી કરવાનું કામ કર્યું. અને આવા સમયે અંગ્રેજોની વૈચારિક વારસદાર એવી વિભાજનકારી વિચારધારાનો ગુસ્સાનો ભોગ બની વૈશ્વિક શાંતિ અને સદભાવનાના પ્રહરી એવા સ્વર્ગીય રાજીવ ગાંધીજીએ પણ ભોગ બનવું પડ્યું. તેમના બલિદાનને સમગ્ર ભારતના હૃદય ઉપર ખૂબ ઊંડી ચોટ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે. ત્યારે સ્વર્ગીય રાજીવજીએ કંડારેલા ભારતીય વિકાસ પથને સમગ્ર દેશ આજે સલામ કરે છે. સ્વર્ગીય રાજીવજીની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, કામગીરી અને બલિદાનને દેશ હંમેશા યાદ રાખશે. સ્વર્ગીય રાજીવજીના વ્યક્તિત્વ, વિચાર અને વિકાસ પથના સંસ્મરણોને આજે યાદ કરવા અને વાગોળવા બદલ આપ સૌનો અંતર્મનથી આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ પટેલ સાહેબ, થેન્ક યુ કેતકર સર. સર આપ सबका खूब खूब धन्यवाद. आदरणीय सातवजी साहब, आदरणीय केतकर साहब, आदरणीय सातव जी, माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद. केतकर जी कैसे हैं?